اپوزیشن رہنما اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کمیٹی بھی بنی تھی پارلیمنٹ کی جو ان بلز کو کنسیڈر کرے گی، ان بلز کو دیکھے گی، ان کا فیصلہ کرے گی۔ پچھلے ہفتے اس کی پوری حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے حکومت نے کہا کہ ہم 4 بلوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے متفقہ پاس کروانا چاہتے ہیں۔ ان میں 2 بل جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تھی، ایک بل یو این سیکیورٹی کاؤنسل 1948 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تھی، اور ایک نیب کا بل جو نیب آرڈیننس کو امینڈ کرے گا، یہ وہ بل تھا۔ ہم نے کہا جی بالکل، یہ آپ سمجھتے ہیں قومی مفاد میں ہے، جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مفاد میں ہے، تو ہم حاضر ہیں۔ ان بلز پر کمیٹی بھی بن گئی پارلیمنٹ کی، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت یونیک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے شاید ایسی کمیٹی شاید 18ویں ترمیم پر بنی ہو، اس کے علاوہ کبھی نہیں بنی۔ تو بڑا سیریسلی ان 4 بلز کو لیا گیا اور یہ ایگری ہوا کہ یہ چاروں بل اکٹھے اس قومی اسمبلی کے سیشن میں پاس ہوں گے اور پھر سینٹ میں جائیں گے۔ بلز پر ایک چھوٹی کمیٹی میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ جو تھی وہ اتنا خوفناک بل تھا کہ ہم نے حکومت سے کہا کہ اگر آپ یہ بل پاس کریں گے تو پاکستان پھر ایک جمہوریت نہیں رہے گا، ایک بدترین آمریت بن جائے گا۔ اس پر کافی بحث ہوئی، تو ہم نے کہا جی ہم کسی صورت اس بل کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس بل کو وڈرا کر لیا گیا۔ جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا بل تھا اس پر ہم نے ایک ترمیم پرپوز کی، اس بل کو قبول کر لیا گیا۔ جو دوسری اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی اس میں بھی ایک ترمیم ہم نے پرپوز کی جو زیر بحث ہے۔ نیب کا بل حکومت جو لائی تھی، ہم نے کہا کہ یہ تو وہی آرڈیننس ہے جو آپ پہلے لائے تھے، اور وہ بھی 2 دفعہ بل پیش ہوا۔ ایک دفعہ اس میں چیئرمین نیب، وائس چیئرمین اور پی جی کی ایکسٹینشن آف سروس کا بل بھی تھا، وہ وڈرا ہو گیا۔ جو باقی رہ گیا وہ وہی بل تھا، وہ آرڈیننس تھا جو پہلے بھی آیا تھا، اور اس میں ایک اضافہ تھا جو مکمل طور پر قانون شہادت کی نفی تھی۔ تو ہم نے کہا یہ بل تو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس چھوٹی میٹنگ کے اندر جو نیب کا آرڈیننس ہے اس پر سیکشن بائی سیکشن بحث ہوگی اور ایک نیا نیب امینڈمنٹ بل فائنلائز کیا جائے گا۔ کل یہ ڈسکشن ہوئی، سیکشن بائی سیکشن ہم گئے۔ ہم نے جو ترامیم ہم سمجھتے تھے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہیں، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کے مطابق ہیں، جو کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی کی جو فیصلے ہیں ان کے مطابق ہیں، اور جو اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق ہیں۔ ہم نے وہ ترامیم حکومت کے سامنے رکھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی ہر سیکشن میں یہ ترمیم ہونی چاہیے۔ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پر کل آپ کو اپنے موقف کا اظہار کریں گے۔ آج دوپہر کو میٹنگ ہوئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ حکومت ان امینڈمنٹ سے ایگری نہیں کرتی۔ ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے بہت سی ترامیم رکھی گئی ہیں، کیونکہ سیکشن بائی سیکشن بحث ہوئی تھی، آپ کون سی ترامیم سے اتفاق نہیں کرتے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس پر ہم نے کہا کہ اگر آپ ترامیم پر
गुड फेथ में बात नहीं कर रहे, आप ही ये बिल लेकर आए थे, तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। तो हमने उस मीटिंग से माजरत की, और उसके अलावा भी जो बड़ी कमेटी थी उसके अंदर 12 बिल्स का एक पैकेज था जिसमें ये 4 बिल भी शामिल थे। तो हमने कमेटी में कहा था कि उनको भी हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अब चूंकि बातचीत हो नहीं सकती, हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही, और उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। और अब हमारा फैसला ये है कि इसके बाद तमाम पार्टियां मशवरा करेंगी, और जो बातचीत भी होगी वो हमारी तजवीज़ है कि एपीसी के फोरम से होगी। ये सारी बात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखनी थी। अब मैं लेकिन आप कितना तवक्को कर रहे हैं अगर जहां मिलने के लिए जा रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, किस हद तक तवक्को है कि आइंदा आने वाले माह में या अगले 1-2 माह में आप कोई कंक्रीट किस्म की कोई इस किस्म का एटमॉस्फेयर बना सकेंगे जो इन हाउस तब्दीली या फिर जो मियां साहब की डिमांड है फ्रेश इलेक्शन उस तरफ जाया जा सके, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स ही होंगे गवर्नमेंट के ऊपर? जहाँ तक ये मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या इन हाउस तब्दीली की बात हो या जो भी अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा, वो तो सारे अपोजिशन मिलके फैसले लेंगे, और जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा, चाहे वो रहबर कमेटी में हो, एपीसी में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। इस इमरान को जाना पड़ेगा, और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब ज़िंदगी और सेहत को भी ख़तरा है, और उनका मुआशी सूरत हाल को भी ख़तरा है। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे हैं, तो अपोजिशन को जल्द से जल्द पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए उनका मिसाइल के हल निकालना पड़ेगा। लोग उस मार्च में एक साथ आपके साथ मैंडेट दिया कि आप मार्च करें और सब लोग आपके साथ चलेंगे। लोग उस मार्च में एक साथ आपके साथ मैंडेट दिया कि आप मार्च करें और सब लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी हद तक और नून लीग भी जलसों की हद तक आपके साथ जरूर शामिल हुई। एट दी एंड आपको इस्लामाबाद अकेले खड़े होना पड़ा। क्या वो आपके अकेले का फैसला था या पूरी अपोजिशन का फैसला था? और अब की बार भी कहीं आपके साथ? देखिए, मैंने उस तो भी वजाहत की थी कि अगर किसी एक पार्टी की तैयारी का लेवल और हो और दूसरी पार्टी की तैयारी का लेवल दूसरा हो, तो उसको हम मैनेज करेंगे, और उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे लेवल पर आकर क्यों शरीक नहीं हुए। और उस वक्त भी आपने मेरी बातें सुनी होंगी और मैं बात करता रहा हूँ। लेकिन ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इसके जो असरात पड़े हैं उसके नतीजे में आपका सवाल बनता है, और इसी की तलाफ़ी के लिए हम सब दोबारा बैठ कर सोच रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, पहले रहबर कमेटी बैठेगी, वो कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी एजेंडे के तौर पर, और फिर एपीसी जो है उसको पहले भी यहाँ आए ना हो, बैठे रहे, अपनी मीटिंग भी की, खबरें थी कि शहबाज शरीफ से मिलना चाह रहे, मुलाकात नहीं हुई। कल मौलाना साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ गए, शहबाज शरीफ बाहर भी आए, उन्होंने मीडिया टॉक भी किया, और आज खबर है कि आप यहाँ से वहाँ जाएंगे मुलाकात करने। क्या चाहते थे शहबाज शरीफ? क्या उनके खदशात थे कि वो आपसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे? तो मौलाना साहब मुलाकात के बाद वो मान गए आपसे मिलने के लिए? ऐसे तो बिल्कुल बात नहीं करी। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब एक तो ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, जहाँ तक कोविड और कोरोना की बात है, हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जहाँ भी पूरी दुनिया में जब एक अहम शख्सियत को ये बीमारी लगी है, तो मीडिया ने और बाकी सियासी जमातों ने उनके साथ हमदर्दी दिखाई। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, शहबाज शरीफ साहब की सेहत की बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे यहाँ का मीडिया हो या कुछ सियासी जमातें, वो शहबाज शरीफ साहब के सेहत पे सियासत कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। अब शहबाज शरीफ साहब
कोविड से एक बहुत मुश्किल बीमारी से, जबकि वो कैंसर पेशेंट भी है, वो गुजरा है उस बीमारी से, और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हो रहा है। मौलाना साहब से भी मिला है, अब आज मेरा मुलाकात है। इंशाल्लाह ताला हम और मुलाकातें करेंगे, और अपोजिशन का जितना भी मुलाकातें होते हैं वो कम होंगे। हमें मिलकर मौक़िफ़ लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्या ये पार्टी का मंशूर है या उनकी अपना तरफ है? क्या उसका क्या था मकसद? जाती मकसद? मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से। मैं समझता हूँ कि शायद ये इंटीरियर कमेटी के जो चेयरमैन है उस लिहाज से शायद मिला होगा, लेकिन मैं तो ज़रूर पूछूंगा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपसे भी और मौलाना साहब से भी सवाल है कि आपका एक बात पे इत्तेफाक है कि हुकूमत को जाना चाहिए। इसी किस्म की मूवमेंट 99 में चली थी, जब पाई बनी थी, अवामी इत्तेहाद बना था, तब भी ये कहा गया था कि हमें सिर्फ ये हमारा मकसद है कि ये हुकूमत जाए, लेकिन उससे अगला प्लान नहीं दिया गया। क्या अब आपके पास इसके बाद का प्लान है कि अगर इमरान जाए तो उसके बाद मुतबादल आप हमको क्या दे रहे हैं? मैं इस पर ज़रा अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, हम मुसलसल 2 सालों से एक बात बड़ी वजाहत से कर रहे हैं कि कौम का, आम आदमी का वोट का मैंडेट चोरी किया गया है। पहले अवाम को वो अमानत वापस की जाए। एक हकीकी मैंडेट के साथ जो भी कौम का नुमाइंदा होगा वो आकर हुकूमत करे। इस तरीके से ये मैंडेट जो है ये चूँकि गलत है, तो एजेंडा जो है वो तो उसी वक्त हमारा तमाम पार्टियों का इस्लामाबाद में तय हो गया था, और आज भी हम उस पर कायम हैं। लेकिन जैसे रात को भी आप हजरात से बात हुई कि अब मसला ये है कि इन्होंने इन 2 सालों में बजट कहाँ पहुँचाया, मुल्क की मईशत कहाँ पहुँचाई, आज गरीब की हालत क्या है, आज मजदूर की हालत क्या है, आज नौजवान बेरोज़गार क्यों है, ताजर तबका क्यों चीख रहा है, पुकार रहा है। तो मुल्क की मईशत को इस हद तक इन्हितात का शिकार करना, ये तो रियासत पे सवाल पैदा हो जाता है कि उसकी बका क्या करना है हमने। लिहाजा हुकूमत जायज़ हुकूमत बने, ताकि वो जो भी करे वो हकीकी मानों में कौम की नुमाइंदगी नज़र आए, और फिर जाहिर है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ होंगी वो मुल्क की मईशत को उठाना होगा। ये बता दीजिएगा कि आप लोग इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए, हुकूमत गिरा देनी चाहिए, जबकि ये मुल्की हुकूमत है। एक डिक्टेटर का यही काम होता था कि मुल्की हुकूमत को गिराता था, इक़्तिदार में आकर बैठ जाता था। आप में और अपोजिशन और डिक्टेटर में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर हुकूमत गिराते हैं? हम इस हुकूमत को जायज़ ही नहीं समझते। हमने, जैसे हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी, हमने पहले दिन से ही बैत नहीं की, और हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। तो इस हुकूमत को जाना होगा, इसलिए कि नाजायज़ भी है और नाअहल और नालायक भी है। तो इस एतबार से हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है आम हालात के मुकाबले में। मौलाना साहब ये क्लियर कीजिएगा कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है अपोजिशन के दरमियान, इमरान के जाने पर लैक ऑफ ट्रस्ट है कि अपोजिशन की पार्टियां, जिस तरह आप एक मरतबा लॉन्ग मार्च के निकल चुके हुए, लेकिन वो ट्रस्ट का इजहार नहीं हुआ, या तरीक़ाकार के ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है कि बड़े मियाँ साहब का ये कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए लंदन में बैठ के, जो उनकी बातें आ रही हैं इन हाउस। असल में लैक ऑफ ट्रस्ट किस पॉइंट के ऊपर है जिस वजह से पूरी अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो पा रही? अब मुत्तहिद हो जा रही है। जब एक इत्तेहाद की तरफ हमारा अमल बढ़ने लग जाता है तो फिर मेरे ख्याल में इस किस्म के सवालात नुकसान करते हैं, फ़ायदा नहीं किया करते। शुक्रिया। क्या नहीं, मैं बतौर सतून के काम कर रहा हूँ।